Hello, dear students. I am Purnima. Today we will study a lesson in English. This is The Happy Prince. This lesson is from your ninth class English book, Moments. Moments is your supplementary book. The author of this chapter is Oscar Wilde. Oscar Wilde is basically an Irish poet, and this story is about a happy prince. Happy prince, it means खुश. ठीक है, हैप्पी रहने वाला राजकुमार. Now, actually, students, the Happy Prince was a beautiful statue here, and he was covered with gold, and he had sapphires for his eyes and a ruby in his sword. And this story revolves around the evolution of human qualities of the prince after his death and the compassion to the sufferings of the people. So, students, let's start the lesson. हैप्पी प्रिंस एक ऐसी स्टोरी है जो आफ्टर डेथ, प्रिंस की डेथ के बाद उसके स्टैचू को इंस्टॉल किया जाता है, लगा दिया जाता है एक काफ़ी हाई प्लेस पे. यही इस स्टोरी में बताया गया है कि किस तरीके से हैप्पी प्रिंस जो है अपनी जो भी चीज़ें थी वो शेयर करता है एक स्वेलो के साथ. सो दिस इज़ अ रियली बहुत ही अच्छी और हार्ट को टच करने वाली, बहुत ही मन को छू लेने वाली ये स्टोरी है. High above the city, on a tall column, stood the statue of the Happy Prince. He was glided all over with thin leaves of fine gold. For eyes, he had two bright sapphires, and a large red ruby glowed on his sword head. One night there flew over the city a little swallow. His friends had gone away to Egypt 6 weeks before, but he had stayed behind. Then he decided to go to Egypt too. All day long he flew, and at night time he arrived at the city. Where shall I put up? He said, I hope the town has made preparation. Here, sapphire is a ब्लू कलर, नीले रंग का एक बहुत ही प्रेशियस स्टोन होता है. और हिल्ट आप यहाँ पर देख रहे हैं, स्वॉर्ड एंड डैगर में जो हैंडल होता है उसको हम हिट कहते हैं. और यहाँ पर हिल्ट में एक जो रूबी लगाया गया है, दैट इज़ अ रेड कलर. सो हाई अबव द सिटी ऑन ए टॉल कॉलम, काफ़ी ऊंची प्लेस पे स्टैचू, हैप्पी प्रिंस की स्टैचू को लगाया गया है आफ्टर द डेथ ऑफ हैप्पी प्रिंस. और he was gilded all over with thin leaves of fine gold. और उसको बिल्कुल उसकी बॉडी के पूरे उसको हिस्से को कवर कर दिया जाता है गोल्ड की परत से, लेयर से. दैट इज़ वाई यहाँ पे बोला गया है थिन लीव्स ऑफ द फाइन गोल्ड. उसकी आँखों पर, हैप्पी प्रिंस की आँखों पर ब्राइट सफ़ायर्स को यूज़ किया गया है. और लार्ज रेड रूबी, लाल रंग का बिल्कुल प्यारा सा रेड कलर का जो रूबी है उसके हिल्ट में लगाया गया है. और इस तरीके से उसको सजाया गया है स्टैचू को. बट वन नाइट देयर फ्लू ओवर द सिटी अ लिटिल स्वेलो. लेकिन एक रात, एक नाइट्स की स्टोरी है कि वहाँ पर एक स्वेलो आता है और वो फ्लू करके, और हिज फ्रेंड्स हैड गॉन अवे टू इजिप्ट 6 weeks बिफोर. और लगभग 6 हफ्ते पहले ही उस स्वेलो के जो फ्रेंड्स थे इजिप्ट जा चुके हैं, लेकिन वो वहाँ पीछे छूट जाता है. अब वो भी डिसाइड करता है कि उसे भी इजिप्ट चले जाना चाहिए. पूरे दिन, ऑल डे लॉन्ग ही फ्लू, पूरे दिन वो इधर उधर शहर में घूमता है. और रात को डिसीजन लेता है कि उस शहर में जब पहुंच करके कि भाई वेयर शैल आई पुट अप, मैं कहाँ रहूँगा. ही सेड, अपने आप से वो बातें करता है कि आई होप द टाउन हैज़ मेड प्रिपरेशन. मेरे लिए ज़रूर इस शहर ने कुछ ना कुछ तो सोचा होगा. इस तरीके से वो हैप्पी प्रिंस के आसपास ही घूमते हुए अपने लिए रात को रुकने के लिए, स्टे करने के लिए प्लेस को सर्च करता है. देन ही सॉ द स्टैचू ऑन द टॉल कॉलम. आई विल पुट अप देयर, ही क्राइड. It's a fine position with plenty of fresh air. So he alighted just between the feet of the happy prince. I have a golden bedroom, he said softly to himself as he looked round, and he prepared to go to sleep. But just as he was putting his head under his wing, a large drop of water fell on him. What a curious thing!
he cried. There is not a single cloud in the sky. The stars are quite clear and bright, and yet it is raining. Then another drop fell. What is the use of a statue if it cannot keep the rain off? He said. I must look for a good chimney pot. And he determined to fly away. But before he had opened his wings, a third drop fell, and he looked up and saw, what did he see? The eyes of the happy prince were filled with tears, and tears were running down his golden cheeks. His face was so beautiful in the moonlight that the little swallow was filled with pity. Who are you? He said. I am the happy prince. Why are you weeping then? Asked the swallow. You have quite drenched me. And now next student, look here. Here is to live. Put up means होता है रहना. To live here. Now enlightened, bright. Curious, eager to know. किसी चीज़ को बहुत जानना चाहता है कोई. That is a curiosity, curious. Determined, firm decision. मतलब मुझे ये करना है तो करना है. Decide कर लेना. And now drenched means wet thoroughly. After this, जब यहाँ पर हैप्पी प्रिंस के आसपास स्वेलो बर्ड पहुँचती है और वो सोचती है उस शहर में पहुँच करके कि कोई रहने के लिए तो मुझे एक प्लेस चाहिए. देन ही सॉ वहाँ पर उसको एक स्टैचू दिखता है और वो स्टैचू कहाँ पर था, एक काफ़ी हाई प्लेस पे लगाया गया था, इंस्टॉल किया गया था. एंड वहाँ पर वो बोलती है, वो स्वेलो बोलता है कि ही यूज़ किया गया है स्वेलो के लिए. सो दिस इज़ अ मेल. ही सो दिस स्टैचू ऑन द टॉल कॉलम. आई विल पुट अप देयर. वो अपने आप चिल्ला के कहती, ओहो मैं वहाँ पर रुकूंगा. इट्स अ फाइन पोजीशन विद प्लेंटी ऑफ फ्रेश एयर. वो बहुत खुश होता है स्वेलो और वो कहते हैं बहुत फ्रेश एयर भी आएगी यहाँ पर और बहुत अच्छी पोजीशन है यहाँ पर रहने के लिए मेरे. सो ही अलाइटेड जस्ट बिटवीन द फीट ऑफ द हैप्पी प्रिंस. और वहाँ पर वो हैप्पी प्रिंस के पैरों के बीच में, यहाँ पर पैरों के बीच में उसको एक जगह दिख जाती है, खाली गैप सा लगता है वहाँ पर. और वहाँ पहुँच कर वो कहती है, कहता है आई हैव अ गोल्डन बेडरूम. मुझे तो गोल्डन बेडरूम है मिल गया. क्योंकि गोल्डन बेडरूम इसलिए वो कहता है बिकॉज वो हैप्पी प्रिंस का जो पूरा बॉडी था गोल्ड प्लेट से, लीव्स जो उसकी लेयर से उससे कवर था. तो उसको लगता है कि फ्रेश एयर भी है और काफ़ी हाई प्लेस पर भी है, सेफली वो वहाँ पर रुक सकता है. He said softly to himself as he looked round and he prepared to go to sleep. अपने आप से वो बातें करता है पोलाइटली स्वेलो और कहता है कि अब तो मुझे सोना चाहिए और ये जगह मुझे बहुत सूट कर रही है. लेकिन जैसे ही वो वहाँ पर, बट जस्ट एज ही वॉज पुटिंग हिज हेड अंडर हिज विंग, लेकिन जैसे ही वो अपने आप को अपने विंग्स में, अपनी पंखों के बीच में छुपा करके सोने की कोशिश करता है, तभी एक लार्ज ड्रॉप ऑफ वाटर फेल ऑन हिम. एक पानी की बड़ी सी बूंद उसके ऊपर गिर जाती है और वो बड़ा क्यूरियोसिटी फील उसको होता है कि बारिश तो हो नहीं रही है. देयर इज़ नॉट अ सिंगल क्लाउड इन द स्काई. कोई भी क्लाउड नहीं है स्काई में. इट्स अ वेरी क्लियर एंड ब्राइट. स्टार्स भी हो दिख रहे हैं एंड येट इट्स रेनिंग. और फिर भी बारिश हो रही है. लेकिन अभी ऐसा वो सोचता ही है स्वेलो की दैन अनदर ड्रॉप फेल. तभी दूसरा पानी का ड्रॉप उसके ऊपर गिर जाता है और वो फिर कहता है स्वेलो, व्हाट्स द यूज़ ऑफ ए स्टैचू. ये स्टैचू का क्या यूज़ है इसका, इतनी बड़ी मूर्ति का और इतनी हाई प्लेस पे लगाने का, कि मैं यहाँ पर अपने आप को सेफली रख भी नहीं सकता हूँ. तो इट कैन नॉट कीप द रेन ऑफ. और ये भी कहता है कि जो मुझे बारिश से मुझे बचा न सके, उससे मुझे कुछ सेफ ना कर सके, तो फिर क्या फ़ायदा. आई मस्ट लुक फॉर गुड चिमनी पॉट. अब स्वेलो अब ये सोचता है कि नहीं, मुझे तो किसी और जगह को देखना होगा जहाँ पे मैं रह पाऊँ, आज रात रुक पाऊँ सेफली. और वो जगह हो सकती है चिमनी पॉट. लेकिन तभी एंड ही डिटरमिन, और तभी वो इस डिसीज़न के साथ उड़ने की जैसे ही कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले ही हैड ओपन हिज विंग्स. एक तीसरी ड्रॉप, थर्ड ड्रॉप उसके ऊपर आके गिर जाती है और वो ऊपर अपनी आंखें उठाकर जैसे ही वो ऊपर देखता है तो उसको क्या दिखाई देता है स्टूडेंट्स. द आइज ऑफ द हैप्पी प्रिंस वर फिल्ड विथ टीयर्स एंड टीयर्स वर रनिंग डाउन हिज गोल्डन चीक्स. उसको तभी दिखता है कि जो हैप्पी प्रिंस है, जिससे अभी उसने पूछा था, थोड़ी देर पहले बात किया था, उसकी आँखों से आंसू गिर रहे हैं, टीयर ड्रॉप्स गिर रहे हैं और इसके पूरे गोल्डन चीक्स को
गीला वेट कर रहे हैं। हिज फेस वॉज सो ब्यूटिफुल, और उसका जो एक्चुअली चेहरा था, उसका जो फेस था, इट वॉज सो ब्यूटिफुल इन द मून लाइट। इस रोशनी में, इस रात को भी रोशनी में बहुत साफ दिख रहा था, चमक रहा था। लेकिन दैट द लिटिल स्वेलो वॉज फिल्ड विथ पिटी, और वो सब कुछ देख के स्वेलो को बहुत कष्ट, बहुत ही ज़्यादा पिटी मीन्स दया आती है, और सौरो फील करता है। और वो कहता है, उसे पूछता है फिर उस वक्त कि हु आर यू, तुम कौन हो। और वहाँ पर आई एम द हैप्पी प्रिंस, वो स्टैचू अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है और कहता है आई एम द हैप्पी प्रिंस, मैं हैप्पी प्रिंस हूँ। तब उसको लगता है कि तुम हैप्पी प्रिंस हो, देन वाई आर यू वीपिंग देन, तो तुम रो क्यों रहे हो। आज द स्वेलो, इस क्वेश्चन को जब पूछा, यू हैव क्वाइट रेंज्ड मी, और तुमने तो इतना रोया है कि मुझे भिगो ही दिया है, बिल्कुल थॉरली, पूरी तरीके से तुमने मुझे भिगो करके रख दिया है। इस तरीके से हैप्पी प्रिंस अपने आंसुओं के साथ इंट्रोडक्शन देता है स्वेलो को। और स्वेलो भी बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे क्यूरियस हो जाती है कि जस्ट कुछ भी क्लाइमेट में ऐसा वेट नहीं है, कुछ भी बारिश नहीं हो रही है, बट स्टिल कहाँ से सारा कुछ हो रहा है। तो इस तरीके से स्टोरी आपकी फर्दर मूव करती है। नेक्स्ट वन देखते हैं क्या है इसमें। व्हेन आई वॉज अलाइव, अब हैप्पी प्रिंस अपनी पूरी स्टोरी यहाँ पर स्वेलो के साथ शेयर करता है। व्हेन आई वॉज अलाइव एंड हैड ए ह्यूमन हार्ट, आंसर द स्टैचू, I didn't know what tears were, for I lived in the palace, where sorrow is not allowed to enter. My courtiers called me the happy prince, and the happy indeed I was. So I lived, and so I died. And now that I am dead, they have set me up here so high that I can see the ugliness and all the misery of my city. And though my heart is made of lead, yet I cannot choose but weep. What, is he not solid gold? Said the swallow to himself. He was too polite to make any personal remarks. Far away, continued the statue in a low musical voice. Far away in a little street there is a poor house. One of the windows is open, and through it I can see a woman seated at a table. Now it means here first one, misery is here pain, sorrow, problem, कष्ट, sufferings. लीच मेटल एलिमेंट होता है, यहाँ पर हैप्पी प्रिंस का जो हार्ट है वो लीच का बना हुआ है, एंड दैट इज़ मेटल का बना हुआ है। सो हार्ड हियर। सो व्हेन आई वॉज अलाइव, हैप्पी प्रिंस फर्दर स्वेलो से अपना स्टोरी को शेयर कर रहा है और कहता है कि जब मैं ज़िंदा था, मेरे अंदर एक ह्यूमन हार्ट था, मैं सोच सकता था, मैं फील कर सकता था, मैं महसूस कर सकता था। आंसर द स्टैचू, आई डिडंट नो व्हाट इज, लेकिन उस वक्त मुझे पता नहीं था कि ये आंसू क्या होते हैं। आई लिव्ड इन पैलेस, क्योंकि मैं महल में रहता था, बहुत अच्छे से जो सारी की सारी मेरे लिए खुशियाँ वहाँ पर थी, सुख जो भी वहाँ पर चीज़ें थी मेरे पास, लग्जूरियस आइटम सब कुछ था मेरे लिए। बट वेयर सॉरो इज़ नॉट अलाउड टू एंटर, वहाँ पर एक ऐसे पैलेस में जहाँ पर किसी भी तरीके की सफरिंग, सॉरो को कोई परमिशन नहीं थी कि वो वहाँ पर एंटर करे। सो माई कॉर्टियर्स कॉल्ड मी द हैप्पी प्रिंस, इस वजह से मेरे जो मंत्री थे, जो कॉर्टियर्स थे, वहाँ पे दरबार में रहने वाले लोग थे, वो मुझे हैप्पी प्रिंस के नाम से ही बुलाते थे। और सच में रियलिटी भी यही थी कि मैं हैप्पी था। सो आई लिव्ड एंड सो आई डाइड, और मैं खुशी मतलब हैप्पी रहकर ही मैं मर भी गया। और मैं आफ्टर डेथ एंड नाउ दैट आई एम डेड दे हैव, और जब मैं मर गया, दे हैव सेट मी अप हियर सो हाई दैट आई कैन सी द अगलीनेस एंड ऑल द मिजरी ऑफ माई सिटी। और जब मेरी डेथ हो गई तो मुझे काफ़ी हाई प्लेस पे, मेरे ही शहर के काफ़ी ऊंची प्लेस पे ला करके मुझे लगा दिया गया, इंस्टॉल कर दिया गया। और मैं यहाँ से अपनी पूरी सिटी की अगलीनेस को, जो खराबियाँ हैं, जो गंदगी है, जो बुराइयाँ हैं, वो सारी चीज़ें, मैं यहाँ की सफरिंग्स को, पेन को मैं देख पा रहा हूँ, महसूस कर रहा हूँ। एंड दो माई हार्ट इज़ मेड ऑफ लीड येट आई कैन नॉट चूज बट वीप, ऑल्दो मेरा हार्ट जो है अब ह्यूमन हार्ट नहीं रहा, मेटल में कन्वर्ट कर दिया गया है, लेकिन फिर भी मैं रो रहा हूँ, क्राई कर रहा हूँ, मैं फिर भी आई कैन नॉट चूज़ बट वीप। What is
अब इस यहाँ पर वो अपनी प्रॉब्लम्स को बता रहा है कि मैं कुछ चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, बस मैं सबकी सफरिंग्स को, सबकी प्रॉब्लम्स को, सब किस तरह से परेशान है। मैं जो चीज़ मुझे जब जानना था तब तो मैंने नहीं देखा, आफ्टर डेथ मैं अब देख रहा हूँ अपने शहर की प्रॉब्लम्स को, और मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा। आई कांट टॉलरेट दीज थिंग। व्हाट इज़ ही नॉट सॉलिड गोल्ड। अब यहाँ पर सेट द स्वेलो टू हिमसेल्फ। अब स्वेलो जब उसकी हैप्पी प्रिंस की बातें सुनता है तो उसको लगता है कि क्या ये सॉलिड गोल्ड नहीं है, लेकिन ऐसा पर्सनल रिमार्क वो उसको नहीं करता है। ही वॉज टू पोलाइट, और बहुत पोलाइटली जो है उसको कोई भी पर्सनल रिमार्क करने से वो बचता है। आगे फर्दर फार अवे कंटिन्यू द स्टैचू इन लो म्यूजिक, और धीरे धीरे अब बहुत ही स्लो वॉइस में वो कहता है, फार अवे इन अ लिटिल स्ट्रीट देयर इज अ पुअर हाउस, वन ऑफ द विंडोज इज ओपन एंड दो इट आई कैन सी अ वुमन सीटेड एट अ टेबल। आप यहाँ पे देख रहे हैं बच्चे, एक विंडो से उसको सब कुछ दिखाई दे रहा है और एक वुमन यहाँ पे बैठी हुई है, टेबल वहाँ पे सामने उसके रखा हुआ है और वो कुछ कर रही है, और यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है जो हैप्पी प्रिंस स्वेलो से शेयर करना चाह रहा है। नेक्स्ट क्या होता है देखते हैं हम। हर फेस इज थिन नाउ हियर, her face is thin and worn, and she has coarse red hands, all pricked by the needle, for she is a seamstress. She is embroidering flowers on a satin gown for the loveliest of the queen's maids of honor to wear at the next court ball. In a bed in the corner of the room, her little boy is lying ill. He has a fever and is asking his mother to give him oranges. His mother has nothing to give him but river water. So he is crying, "Swallow, swallow, little swallow, will you not bring her the ruby out of my sword hilt? My feet are fastened to this pedestal and I can't move. I am waited for in Egypt," said the swallow. "My friends are flying up and down the Nile and talking to the large lotus flowers. My friends are flying up and down the Nile and talking to the large lotus flowers. Soon they will go to sleep." The prince asked the swallow to stay with him for one night and be his messenger. "The boy is so thirsty and the mother so sad," he said. "I don't think I like boys," answered the swallow. "I want to go to Egypt." But the happy prince looked so sad that the little swallow was sorry. "It's very cold here," he said, but he agreed to stay with him for one night and be his messenger. "Thank you, little swallow," said the prince. The swallow picked out the great ruby from the prince's sword and flew away with it in his beak over the roofs of the town. Now further, ये हैप्पी प्रिंस जब उस विंडो से उस वुमेन को देखता है जो अपनी एक टेबल के पास, उसके पास उसका एक बच्चा भी है और कुछ प्रॉब्लम में है, वो वहाँ पे डिफाइन करता है कि हर फेस इज़ थिन एंड वॉर्न एंड शी हैज़ अ कोर्स। वो ये कहता है कि उसका जो फेस है वो बहुत ज़्यादा थिन, मतलब पतला हो चुका है, कमज़ोर सा दिख रही है वो वुमेन, एंड उसका जो शी हैज़ कोर्स मीन्स हियर हार्श, बहुत रफ, उसके हाथ जो हैं बिल्कुल रेड हो चुके हैं। क्योंकि वो कुछ स्टिचिंग, कुछ स्विंग कर रही है अपने हाथ से। और शी इज़ अ सिमस्ट्रेस इज़ अ वुमेन हु जो सिलाई का काम करती है, दैट इज़ उनको हम सिमस्ट्रेस कहते हैं। तो शी इज़ एम्ब्रॉयडरिंग फ्लावर्स, और वो एक सैटिन गाउन के ऊपर कुछ फ्लावर्स को एम्ब्रॉयडरी कर रही है। और वो क्यों कर रही है? बिकॉज उसको क्वींस मेड्स ऑफ ऑनर टू वेयर एट द नेक्स्ट कोर्ट बॉल, उसको बहुत जल्दी क्वींस की मेड को उसको देना है, जिससे कि वो नेक्स्ट जो कोर्ट बॉल होने वाले हैं, उनके प्रोग्राम्स होते हैं, उनमें वो पहन सके। इन अ बेड इन द कॉर्नर ऑफ द रूम, और साथ ही उनके बेड के पास ही कॉर्नर में एक छोटा सा बच्चा जो है वो रो रहा है, लाइंग, वो बीमार सा दिख रहा है। ही हैज़ अ फीवर, और उसको बुखार है।
एंड इज़ आस्किंग हिज मदर, वो अपनी मॉम से लगातार कॉन्टीन्यूसली मांग रहा है कि उसे कुछ ऑरेंजेस दे दो, बट हिज मदर हैज़ नथिंग टू गिव हिम। लेकिन उसकी मॉम के पास उस बच्चे को जिसको कि प्रॉब्लम है, जिसको कि फ़ीवर है, बीमार है, इस वक्त सिक है, उसको देने के लिए कुछ नहीं है एक्सेप्ट केवल अगर कुछ है उनके पास तो रिवर वाटर। इसलिए अब यहाँ पर हैप्पी प्रिंस स्वेलो को आवाज़ देकर उसको बोलता है कि स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो विल यू नॉट ब्रिंग हर द रूबी आउट ऑफ माई। अब यहाँ पर वो कहता है कि तुम मेरे जो सॉर्ड है, जो मेरे हाथ में तलवार है, उसकी जो हिल्ट में रेड रूबी लगा हुआ है, ये मेरे किसी काम का नहीं है, इसे तुम निकालो। विल यू नॉट ब्रिंग हर द रूबी आउट ऑफ माई सॉर्ड हिल्ट? माई फीट आर fastened to this pedestal and I cannot move. I am waited for. अब वो कहते हैं कि मेरे जो पैर हैं वो तो बंधे हुए हैं, मैं मूव नहीं कर सकता। आई एम वेटेड इन इजिप्ट, और मेरा जो है स्वेलो सेक द स्वेलो, स्वेलो का कहना है कि मेरा जो है इजिप्ट में कोई ने इंतज़ार कर रहा है, यानी मेरे फ्रेंड्स जो हैं वो मुझसे पहले वहाँ जा चुके हैं, वो मेरा वेट कर रहे हैं। माई फ्रेंड्स आर फ्लाइंग अप एंड डाउन द नाइल, और मेरे फ्रेंड्स इस वक्त नाइल रिवर पे, नाइल रिवर है वहाँ की बहुत बड़ी रिवर है वहाँ पर, वो वहाँ पर उसके ऊपर से उड़कर जा रहे हैं। और वो अभी टॉकिंग टू द लार्ज लोटस फ्लावर्स, और वो अभी एक काफ़ी बिग लोटस फ्लावर्स के बारे में वो लोग बातें कर रहे हैं। सून दे विल गो टू स्लीप, और बहुत जल्दी वो भी सोने चले जाएंगे। द प्रिंस आस्क्ड द स्वेलो टू स्टे विथ हिम फॉर वन नाइट एंड बी हिज मैसेंजर। अब यहाँ पे प्रिंस अपनी सिटी की मिजरी को, सौरों को देख करके स्वेलो से कुछ हेल्प लेना चाहता है, और वो इन स्वेलो को रिक्वेस्ट करता है कि तुम थोड़ी देर के लिए स्टे विथ हिम फॉर वन नाइट, एक रात के लिए तुम बस इस शहर में यहाँ पर रुक जाओ और मेरे लिए कुछ काम करो। बी मैसेंजर, मेरा मैसेंजर मीन्स होता है एक तरीके का आपको मैसेज को आगे, यानी जो मैं चाहता हूँ, मैं करना चाहता हूँ उसमें मेरी हेल्प करो, मदद करो। मैसेंजर इज़ द संदेश जिसको कहते हैं ना, आपके मैसेज को आगे बढ़ाने वाला। सो द बॉय इज़ सो थर्स्टी, अब यहाँ पर वो बोलता है कि जो बच्चा है बहुत प्यासा है, एंड द मदर सो सैड, और मॉम जो है उसकी बहुत दुखी है। ही सेड आई डोंट थिंक आई लाइक बॉयज़ आंसर द स्वेलो। अब चूँकि स्वेलो बिल्कुल रुकना नहीं चाहता था, वो चाहता था कि वो बस किसी तरह एनी हाउ इजिप्ट वो भी चला जाए और अपने ग्रुप्स के साथ वो मिल जाए, तो वो किसी भी तरीके से प्रिंस को टालना चाह रहा था। तो उसने कहा आई डोंट थिंक आई लाइक बॉयज़, मुझे बॉयज़ पसंद नहीं। आई वॉन्ट टू गो टू इजिप्ट, मुझे तो बस कहीं जाना है तो इजिप्ट जाना है। बट द हैप्पी प्रिंस लुक्ड सो सैड दैट द लिटिल स्वेलो वॉज सॉरी। बट द हैप्पी प्रिंस लुक, लेकिन यहाँ पर हैप्पी प्रिंस के चेहरे की वो उसकी आंखों के आंसुओं को देख करके लिटिल स्वेलो थोड़ा सा दुख फील होता है, और वो कहता है इट्स वेरी कोल्ड हियर, ही सेड, बट आई अग्री टू स्टे विथ हिम फॉर वन नाइट एंड बी हिज मैसेंजर, थैंक यू लिटिल स्वेलो। और अब वो फाइनली स्वेलो मान जाता है उसकी हालत को, प्रिंस की इस सिचुएशन को देख करके कि वो कुछ अच्छा ही करना चाह रहा है, उसमें वो अब हेल्प करने को रेडी हो जाता है स्वेलो। और वो कहता है ठीक है, इट्स ऑल राइट सेड द प्रिंस, और प्रिंस भी इसके लिए उसको थैंक कहता है। द स्वेलो पिक्ड आउट द ग्रेट रूबी फ्रॉम द प्रिंस सॉर्ड, और इस तरीके से स्वेलो सॉर्ड के जो हिल से वहाँ से रूबी को निकाल करके फ्लेव अवे विथ इट इन हिज बीक ओवर द रूफ्स ऑफ, वो वहाँ से उस हिल में से रेड रूबी को लेकर के उड़ जाता है, और जा करके वो आगे जो भी प्रिंस ने कहा था वो करने के लिए रेडी हो जाता है, रूफ ऑफ द टाउन। और अब वो उस शहर के स्काई में उस हाथ अपने बीक में रेड रूबी को पकड़ करके आगे जो भी कहा था यहाँ पर प्रिंस ने करने के लिए, वो रेडी होके वो करने को चला जाता है। He passed by the cathedral tower where the white marble angels were sculptured. He passed by the palace and heard the sound of dancing. A beautiful girl came out on the balcony with her lover. I hope my dress will be ready in time for the state ball, she said. I have ordered flowers to be embroidered on it, but the seamstresses are so lazy. So lazy. He passed over the river and saw the lanterns hanging on the masts of the ships. At last he came to the poor woman's house and looked in. The boy was tossing feverishly on his bed, and the mother had fallen asleep. She was so tired. In he hopped and laid the great ruby on the table beside
the asleep thimble. Then he flew gentle round the bed. Then he flew gently round the bed, fanning the boy's forehead with his wings. How cool I feel, said the boy. I must be getting better. And he sank into a delicious slumber. Then the swallow flew back to the happy prince, then told him what he had done. It's curious, he remarked, but I feel quite warm now, although it is so cold. आपने देखा इससे पहले स्टोरी के कि कैसे वहाँ पे कोल्ड होने के बाद भी स्वालो जो है बिल्कुल रेडी हो जाता है हैप्पी प्रिंस का हेल्प करने के लिए। और जैसा उसने कहा, उस रूबी को उसके हिल्स से उसने निकाला और वो रूफ से होते हुए टाउन के उस शहर में ऊपर फ्लाई करते हुए वहाँ पे पहुँचता है ना। वो जब वहाँ से जा रहा होता है तो उसको वहाँ पर एक कैथेड्रल टावर, चर्च का जो टावर होता है काफ़ी ऊंचा ऊंचा सा बना होगा, आपने देखा होगा, ध्यान दिया होगा। दैट्स अ वेरी मैक्सिमम चर्च में वही लगा होता है। वहाँ पर उसने देखा कि वेयर द वाइट मार्बल एंजल्स, जहाँ पे वाइट कलर के मार्बल्स से बने हुए एंजल्स थे, लगाए गए थे। ही पास बाई द पैलेस, और वहीं पास से होते हुए एक पैलेस जो था, उसने एक आवाज़ सुनी, हर्ड द साउंड ऑफ डांसिंग, जहाँ पे कुछ डांस करने जैसी कुछ आवाज़ें आ रही थी। एक ब्यूटीफुल गर्ल, एक सुंदर सी लड़की तभी बालकनी में आती है अपने बिलवड के साथ, अपने लवर के साथ, एंड वो उससे डिस्कशन क्या कर रहे हैं, आई होप माई ड्रेस विल बी रेडी इन टाइम फॉर द स्ट्रीट बॉल। और वो कहती है कि मुझे उम्मीद है कि मेरी जो ड्रेस बॉल जो मैंने स्टिच करने के लिए, जो स्टिच करने के लिए मैंने दिया है, वो टाइम पर रेडी हो जाएगा। साथ ही वो ये भी कहती है, आई हैव ऑर्डर्ड फ्लावर्स टू बी एम्ब्रॉयडर्ड ऑन, मैंने फ्लावर्स भी एम्ब्रॉयडर करने के लिए बोला था, लेकिन जो सीमिस्ट्रेस है वो बहुत लेज़ी लग रही है, वो मेरा काम टाइम पर नहीं दे रही है। ही पास, अब यहाँ पर स्वेलो जो है आगे मूव करता है, हाथ अपने बीक्स में रूबी को लेकर के आगे का वो देखिए क्या देखता है। ही पास ओवर द रिवर एंड सॉ द लैंटर्न्स हैंगिंग ऑन द मास्ट ऑफ द शिप। अब वो आगे जब जाता है, रिवर्स को क्रॉस करता है, तो उसने देखा कि पोल्स पे, आपने देखा है शिप्स के ऊपर मास्ट लगे होते हैं, जो पोल्स होते हैं वहाँ पर लैंटर्न हैंग होते हैं, जिससे कि रोशनी से दिखाई पड़ सके आगे की सारी चीज़ें। एट लास्ट ही केम टू द पुअर वुमन, और वो सारा कुछ क्रॉस करके फाइनली स्वेलो उस पुअर वुमन जहाँ पे प्रिंस ने एक्चुअल में भेजा था वहाँ पे पहुँचता है और लुक्ड इन, और अंदर देखता है द बॉय वॉज टॉसिंग फेवरिशली ऑन हिज बेड, कि बॉय किस तरीके से बहुत बुरी तरीके से उसको फीवर है, बुखार हो रहा है, और अपने बेड पर ही वो परेशान सा हो रहा है। एंड उसकी मॉम जो है, एंड द मदर हैड फॉलन अस्लीप, और मॉम को नींद आ गई है। शी वॉज सो टायर्ड, क्योंकि उसने पूरे दिन बहुत मेहनत किया है, इस वजह से वो सो गई है। And he hopped, and I laid the great ruby on the table beside the sleep thimble. Thimble is here कवर worn on the finger. जब हम कोई भी स्टिचिंग करता है तो उसके फिंगर्स में एक तरीके का कैप लगा देते हैं, जिससे कि स्टिचिंग करते समय किसी को फिंगर्स में निडल वगैरह चुभे नहीं, उसको चोट नहीं लगे। दैट इज़ अ थिम्बल। तो वो टेबल के पास में जा कर के स्वेलो वहाँ पर, देन ही फ्लू जेंटली राउंड द बेड फैनिंग द बॉयज़, वहाँ पर वो रूबी को रख देता है, और धीरे से वो बॉय जहाँ पर सोने की कोशिश कर रहा था वहाँ पर पहुँच करके अपने फ़ैन को फ्लैपिंग करता है, उसको बजाता है, मतलब हिलाता है उससे, जिससे कि थोड़ी सी हवा सर्कुलेट हो। और इससे हाउ कूल आई फील, सेड द बॉय। बॉय कहता है कितना अच्छा मुझे लग रहा है, कितना ठंडा सा, आई मस्ट बी गेटिंग बेटर। अब वो बॉय जो है अपने आप को कह रहा है कि मुझे अब अच्छा लग रहा है, मैं ठीक हो रहा हूँ। एंड ही सैंक इनटू अ डिलीशियस स्लम्बर स्वीट स्लीप। हियर इज़ द स्लम्बर मीन्स स्वीट स्लीप, यानी अच्छी सी नींद में वो बच्चा भी जो अभी परेशान सा हो रहा था, बहुत अच्छी नींद में सो जाता है। देन स्वेलो फ्लू बैक टू द हैप्पी प्रिंस, और अब स्वेलो हैप्पी प्रिंस के पास वापस चला जाता है, और वो वहाँ पर वो सारी बातें बताता है जो कि उसने किया था उस बच्चे के लिए, उस मॉम के लिए, उस फैमिली के लिए। इट्स क्यूरियस, ही रिमार्क, बट आई फील क्वाइट वार्म नाउ, वार्म नाउ ऑल्दो इट्स सो कोल्ड। अब यहाँ पर हैप्पी प्रिंस को स्वेलो भी कहता है कि ऑल्दो यहाँ पर बहुत ठंड है, मुझे सच में इजिप्ट चले जाना चाहिए था, क्योंकि वहाँ पर इतनी ठंड नहीं होगी, इतना कोल्ड नहीं होगा, लेकिन पता नहीं आई डोंट नो क्यों मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि इस वक्त उसने बहुत अच्छा काम किया था, उसको उस काम को करके जो सेटिस्फैक्शन, जो वार्मनेस फील हो रहा था,
उसको वो हैप्पी प्रिंस से शेयर करता है। यहाँ पर नेक्स्ट स्टोरी में बहुत अच्छी तरीके से आगे बताया गया है, दैट इज़ बिकॉज यू हैव डन अ गुड एक्शन, दैट इज़ बिकॉज यू हैव डन गुड एक्शन सेड द प्रिंस। अब यहाँ पर प्रिंस भी कहता है यस, तुम वार्म इसलिए फील कर रहे हो, तुम अपने आप को अच्छा महसूस इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुमने एक अच्छा काम किया है। एंड देन द लिटिल swallow began to think and then fall asleep. Thinking always made him sleepy. When day broke, he flew down to the river and had a bath. Tonight I go to Egypt, said the swallow, and he was in high spirits. At the prospects, he visited all the monuments and sat a long time on the top of the church steeple. When the moon rose, he flew back to the happy prince. Have you any commissions for Egypt? He cried. I'm just starting. Swallow, swallow, little swallow, said the prince. Will you stay with me one night longer? I'm waited for in Egypt, answered the swallow. Swallow, swallow, little swallow, said the prince. Far away across the city, I see a young man in a garret. He is leaning over a desk covered with papers, and in the glass by his side there is a bunch of withered violets. His hair is brown and crisp, and his lips are red as a pomegranate, and he has large and dreamy eyes. He is trying to finish a play. He's trying to finish a play for the director of a theatre, but he's too cold to write anymore. There is no fire in the grate, and hunger has made him faint. Now, students, swallow को अब फिर प्रिंस रिक्वेस्ट करता है। swallow सोचता है कि मैंने जो काम किया है अब मुझे एक अच्छी सी नींद आएगी, बहुत अच्छे से मैं सो पाऊँगा, और नेक्स्ट डे मैं उठ करके सबसे पहले मैं अपने फ्रेंड से मिलने के लिए इजिप्ट निकल जाऊँगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। That is because you have done a good action, said the prince. And the little look here, students. First of all, word meanings. High spirits means होता है lively and cheerful. Prospects has possibility. चर्च स्टेपल तो आपने देखे होंगे, टॉल टावर, काफ़ी ऊंचे ऊंचे टावर्स बने होते हैं, दैट इज़ ऑन चर्च। एंड ग्रेट जो होता है एक लिविंग स्पेस होता है, जो आप टॉप ऑफ अ हाउस, घर के ऊपर जो रूम बने होते हैं उनको हम कहते हैं। एंड विदर्ड मीन्स होता है टू बिकम ड्राई, बिल्कुल सूख जाना। आफ्टर दिस जब प्रिंस ने swallow को बहुत अच्छा बोला कि नहीं तुमने अच्छा काम किया है, इसलिए गुड एक्शन की वजह से तुम्हें अच्छा महसूस हो रहा है, स्कूल में भी तुम वार्म फील कर रहे हो। एंड द लिटिल swallow बिगन टू थिंक एंड देन फॉल asleep. उसने भी सोचना शुरू किया और उसके बाद सोचते सोचते वो सो जाता है। थिंकिंग ऑलवेज मेड हिम स्लीपी, और सोचने की वजह से वो उसको नींद आ जाता है। वैन डे ब्रोक ही फ्लेव डाउन टू द रिवर एंड हैड अ बाथ. लेकिन सुबह जैसे ही सुबह सुबह मॉर्निंग स्टार्ट होता है वो उड़ करके अच्छी सी बात लेता है, नहाता है। एंड टुनाइट आई गो टू इजिप्ट, और वो डिसीज़न लेता है कि मैं आज तो ज़रूर इजिप्ट चला जाऊँगा। एंड ही वॉज इन हाई स्पीड, ऐसा सोच करके वो बहुत खुश हो जाता है। एट द प्रॉस्पेक्ट्स, और आगे ऐसा उसकी था पॉसिबिलिटी कि नहीं अब मुझे तो जाना ही है, मुझे यहाँ पर नहीं रुकना है। ही विजिटेड ऑल द मॉन्यूमेंट्स एंड सच अ लॉन्ग टाइम ऑन द टॉप ऑफ द चर्च स्टेपल, और ऐसा सोच करके उसने सोचा क्यों ना आज मैं पूरे दिन शहर में एंजॉय कर लूँ, यहाँ के जितने भी हाई मॉन्यूमेंट्स हैं, ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स हैं, उन जो टावर्स हैं जो चर्च के ऊपर, मैं सबको देख लूँ, घूम लूँ। और ऐसा करके वहाँ पर वो टॉल टावर पे बैठ कर से सोच रहा है। व्हेन द मून रोज ही फ्लू बैक टू द हैप्पी प्रिंस, और शाम को वापस हैप्पी प्रिंस के पास वो आता है। और हैव यू एनी कमीशन फॉर इजिप्ट, ही क्राइड, क्या तुम्हें इजिप्ट जाना है, क्या कुछ काम है? ऐसा ऐसा वो बातें करते हैं, लेकिन आई एम जस्ट स्टार्टिंग, मैं बस अभी जाना ही है मुझे। तभी सेड द प्रिंस, प्रिंस क्या कहता है, swallow swallow little swallow, विल यू स्टे विथ मी वन नाइट लॉन्गर, एक वन नाइट के लिए क्या तुम यहाँ पर मेरे साथ और रुक सकते हो? आई एम वेटेड फॉर इन द इजिप्ट, आंसर द swallow, लेकिन swallow आंसर करता है नो नो,
मेरा इस जिप में कोई इंतज़ार कर रहा है। स्वेलो स्वेलो, अब यहाँ पर फिर से लिटिल स्वेलो सेड द प्रिंस, फिर यहाँ पर फिर से प्रिंस रिक्वेस्ट करता है स्वेलो से, फार अवे अक्रॉस द सिटी आई सी अ यंग मैन इन अ garret. He is leaning over a desk covered with papers, and in the glass by his side there is a bunch of weathered violets. वो कहता है कि मुझे दूर यहाँ से दिख रहा है शहर में एक यंग मैन है जो अपने रूफ के ऊपर जो लिविंग एरिया है वहाँ पर वो है, और डेस्क के ऊपर उसकी जो टेबल है जहाँ पर वो बैठा हुआ है कुछ पेपर्स पड़े हुए हैं, एंड साइड में ही उसके एक ग्लास है और कुछ सूखे हुए वॉयलेट्स, बंच ऑफ विदर्ड वॉयलेट्स, कुछ सूखे हुए वॉयलेट्स भी वहाँ पे रखे हुए। हिज हेयर इज़ ब्राउन, और उसके बाल जो हैं पूरे ब्राउन हो चुके हैं, क्रिप्स हो चुके हैं, कर्ली हो चुके हैं। एंड साइड बाय साइड वो ये भी बताता है कि हिज लिप्स आर रेड एज अ पॉम, और उसके बिल्कुल पॉमग्रेनेट जैसे लाल बिल्कुल रेड कलर के उसके होंठ हो चुके हैं, बिल्कुल अनार के जैसे। एंड ही हैज़ लार्ज एंड ड्रीमी आइज़, और ऐसा लग रहा है जैसे उसकी आँखें बिल्कुल सोचते सोचते गहरी, बिल्कुल ड्रीमी सपनों के पीछे भागते भागते उसकी आँखें भी गहरी हो चुकी हैं, बड़ी हो चुकी हैं। इन दिस वे वो पूरे उस वक्त एक और रिक्वेस्ट करता है स्वेलो से कि ही इज़ ट्राइंग टू फिनिश अ प्ले फॉर द डायरेक्टर ऑफ अ थिएटर, बट ही इज़ टू कोल्ड टू राइट एनी मोर, too cold to write anymore. There is no fire in the grate and hunger has made him faint. अब वो ये भी बताता है उस जो राइटर था उसके बारे में कि कैसे वो परेशान सा है, कैसे उसके जो स्पेशल उसका डिस्क्रिप्शन अभी वो दे रहे हैं हैप्पी प्रिंस की, वो कुछ लिखना चाह रहा है, एक प्ले लिखना चाह रहा है, फिनिश करना चाह रहा है, लेकिन वो प्ले जो है डायरेक्टर को तभी दे पाएगा जब वो लिख पाएगा, उसको कंप्लीट कर पाएगा, लेकिन अभी वो इस सिचुएशन में नहीं है बिकॉज वहाँ पे बहुत कोल्ड है और इस वजह से वो उसको कंप्लीट नहीं कर पा रहा है। और एक और प्रॉब्लम है, देयर इज़ नो फायर इन द ग्रिल, और उसकी जो फर्नेस है जो उसके रूम में जो रखी गई है आग के लिए जो प्लेस होती है वो है, उसमें फायर नहीं है, उसमें किसी भी तरीके की आग नहीं है जिससे कि वो अपने आप को वार्म कर सके, अपने आप को ठीक कर सके और लिख सके जो कुछ उसे कंप्लीट करना है। साथ ही साथ वो भूखा भी बहुत है और इस वजह से वो फेंट हो जा रहा है, बेहोश हो गया है। ये सारा कुछ जब उसको डिस्क्राइब करता है स्वेलो को, तो स्वेलो भी सोच में पड़ जाता है कि अब क्योंकि ये अगेन प्रिंस जो है सारी शहर का वहाँ से पूरा वो देख करके सबकी प्रॉब्लम्स को देख करके वो महसूस करता है और वो सारी चीज़ें चाहता है कि एक मैसेंजर मेरे पास कोई हो, वो मेरी चूँकि मैं नहीं कर सकता हूँ तो कोई और मेरी तरफ से करे हेल्प इनकी जो कि प्रॉब्लम में है। नाउ आई विल वेट विथ यू वन नाइट लॉन्गर सेड द स्वेलो हु रियली हैड अ गुड हार्ट। He asked if he should take another ruby to the young playwright. Alas, I have no ruby now, said the prince. My eyes are all that I have left. They are made of rare sapphire, which were brought out of India 1,000 years ago. He ordered the swallow to pluck out one of them and take it to the playwright. He will sell it to the jeweler and buy firewood and finish his play, he said. Dear prince, said the swallow, I can't do that. And he began to weep. Swallow, swallow, little swallow, said the prince, do as I command you. So the swallow plucked out the prince's eye and flew away to the young man's garret. It was easy enough to get in, as there was a hole in the roof. Through this he darted and came into the room. The young man had his head buried in his hands, so he didn't hear the flutter of the bird's wings. And when he looked up, he found the beautiful sapphire lying on the withered violets. Now, students, here again, किसी भी तरीके से स्वेलो को प्रिंस रोकना चाहता है बिकॉज उसको एक और इंसिडेंट, एक और पर्सन दिख जाता है जिसकी वो मदद करना है। स्वेलो कहता है, यस आई विल वेट विथ यू वन नाइट लॉन्गर, मैं एक रात और तुम्हारे साथ रुक सकता हूँ। एंड हु रियली हैड अ गुड हार्ट, और वो भी इसलिए कि तुम्हारे पास सचमुच एक बहुत अच्छा हार्ट है, तुम दूसरों की मदद करना चाहते हो। ही आस्क्ड इफ़ ही शुड टेक अनदर रूबी टू द यंग प्ले राइट, और वो ये
प्रिंस उसे कहता है कि वो उसकी दूसरे रूबी को लेकर के जाए और वो प्ले राइट को उस राइटर को दे दे। लेकिन आई हैव नो रूबी नाउ, लेकिन वो कहता है कि मेरे पास तो, सेट द प्रिंस। ही आस्क्ड इफ ही शुड टेक अनदर रूबी, लेकिन सेट प्रिंस कहता है नहीं, मेरे पास तो है ही नहीं। माई आईज आर ऑल दैट आई हैव लेफ्ट, दे आर मेड ऑफ रेयर सफायर। और अब यहाँ पर वो कहता है कि मेरी जो, माई आइज आर ऑल दैट आई हैव लेफ्ट, मेरी आँखों में ही है जो कुछ अब बचा हुआ है यहाँ पर, तो क्योंकि वहाँ पर तो सफ़ायर लगी ही नहीं है, वहाँ पर रूबी लगी नहीं, यहाँ पर जो कुछ है अब मेरे पास, मेरी आँखों में है, वो ले सकते हो। दे आर मेड ऑफ रेयर सफ़ायर, और वो क्या चीज़ें, बहुत रेयर सफ़ायर हैं, ब्लू कलर का मैंने स्टोन्स बताया था अभी, वो हैं। विच वो ब्रॉट आउट ऑफ इंडिया, और जिनको इंडिया से 1000 ईयर्स अगो, काफ़ी साल पहले लेकर के आया गया था। एंड ही ऑर्डर्ड द स्वेलो टू प्लक आउट वन ऑफ देम, और उसने स्वेलो को कहा कि उनमें से तुम एक ले जाओ, और ये ले जाकर को सफ़ायर को, चूँकि रूबी तो अब है नहीं, आप इसे प्ले राइट को दे दो। ही विल सेल इट टू द ज्वेलर, और वो इसे बेचेगा ज्वेलर को, और इससे वो अपने लिए फायरवुड ले लेगा, और फिर अपने को वार्म करके वो अपनी जो भी वो राइटिंग कर रहा है वो उस प्ले को कंप्लीट करेगा। ही सेड, डियर प्रिंस, सेड द स्वेलो, आई कांट डू दैट। अब यहाँ पर स्वेलो को बहुत बहुत दुख होता है जब वो प्रिंस उसको ऑर्डर करता है कि उसकी आईज से सफ़ायर को कोई निकाल करके ले जाए, तो वो कहता है नो नो, मैं नहीं कर सकता हूँ। एंड ऐसा कह के वो रोने लगता है स्वेलो। सेड द प्रिंस, अब प्रिंस को तो मदद करनी थी, हेल्प करनी थी अपनी सिटी में जो प्रॉब्लम में है उनके लिए, इसलिए उसको लगता है कि स्वेलो कमज़ोर पड़ रहा है, वो उस तरीके से नहीं कर सकता, तो उसने कमांड किया, बोला डू एज आई कमांड यू, जैसा मैं तुम्हें कह रहा हूँ वैसा ही तुम करो। सो द स्वेलो प्लक्ड आउट द प्रिंस आई एंड फ्लू अवे टू द यंग मैन्स कैरेट। और अब इस तरीके के ऑर्डर को सुन करके स्वेलो उसकी आँख से, प्रिंस की आई से वो सफ़ायर का एक पीस, एक सफ़ायर निकाल करके ले करके उड़ जाता है। इट वॉज ईजी एनफ टू गेट इन एज देयर वॉज अ होल इन द रूफ, और आगे जा कर के जहाँ उसको देना था वहाँ पर उस रूफ पर पहुँच करके उसने देखा कि एक होल था। प्ले राइट जो राइटर था जहाँ पर उसको ये रूबी, ये सफ़ायर पहुँचाना था, वहाँ पर उसके रूफ पर एक होल था। थ्रू दिस ही डार्टेड, और उस रूफ के थ्रू एंटर कर जाता है स्वेलो एंड केम इन टू द रूम। द यंग मैन हैड हिज हेड बरीड इन हिज हैंड, और इस वक्त वो यंग मैन, वो प्ले राइट बहुत प्रॉब्लम में था, बहुत सॉरो फील कर रहा था, और उस वजह से उसने किसी भी तरीके की फ्लैपिंग की, विंग्स की कोई आवाज़ नहीं सुनी किसी भी तरीके की। एंड देन ही लुक्ड, and when he looked up he found the beautiful sapphires lying on the withered foliage। और जब उसने अपनी आंखें उठाई, अपनी गर्दन को, अपने सर को, हेड को ऊपर उठाया, तो उसने देखा कि उसके पास एक ब्लू कलर का बहुत ही प्रेशियस स्टोन सफ़ायर पड़ा हुआ है। इस तरीके से सेकंड यहाँ पर भी हैप्पी प्रिंस ने बड़ी मुश्किल से रिक्वेस्ट करके एनी हाउ स्वेलो से इसकी भी, इस प्ले राइटर की भी हेल्प की। नेक्स्ट फर्दर, आई एम बिगनिंग टू बी अप्रिसिएटेड, ही क्राइड, दिस इज फ्रॉम सम ग्रेट एडमायरर, नाउ आई कैन फिनिश माई प्ले। एंड ही लुक्ड क्वाइट हैप्पी। Then next day the swallow flew down to the harbour. He sat on the mast of a large vessel and watched the sailors walking. I am going to Egypt, cried the swallow, but nobody minded. And when the moon rose, he flew back to the happy prince. I have come to bid you goodbye, he cried. Swallow, swallow, little swallow, said the prince. Will you not stay with me one night longer? It is winter, answered the swallow, and the snow will soon be here. In Egypt, the sun is warm on the green palm trees, and the crocodiles lie in the mud and look lazy about them. In the square below, said the happy prince, there stands a little match girl. She has let her matches fall in the gutter, and they are all spoiled. Her father will beat her if she doesn't bring home some money, and she is crying. She has no shoes or stockings, and her little head is bare. Pluck out my other eye and give it to her, and her father will not beat her. Look here, this is a little girl.
मैच स्टिक इसके हाथ में है। आगे आई एम जस्ट गोइंग टू एक्सप्लेन द स्टोरी। ही क्राइड। अब यहाँ पर जब उस प्ले राइट को सफ़ायर मिल जाता है, बहुत खुश हो जाता है और वो कहता है अपने आप से कि ज़रूर मेरा कोई ना कोई एडमायरर है जिसने मेरी अप्रिसिएशन के लिए मुझे ये गिफ्ट दिया है, बहुत खुश होकर के। एंड वहाँ वो कहता है दिस इज़ फ्रॉम सम ग्रेट एडमायरर, मेरा कोई प्रशंसक है जिसने मुझे ये सफ़ायर मुझे दिया है। नाउ आई कैन, अब मैं फिनिश कर पाऊँगा अपने उस प्ले को जो मैं अभी तक नहीं कर पा रहा था। एंड ही लुक्ड क्वाइट हैप्पी। इस तरीके से बहुत खुश हो जाता है। द नेक्स्ट डे स्वेलो फ्ली डाउन टू द हार्बर। नेक्स्ट डे अब स्वेलो, अब फिर से उसके दिमाग में आता है कि अब उसे फिर से चला जाना चाहिए। लुक डाउन टू द हार्बर। नाउ ही सैट ऑन द मास्ट ऑफ अ लार्ज वेसल एंड वॉच द सेलर्स वॉकिंग। अब वो वहाँ पर रिवर के पास, जो आपने देखे होंगे ना बड़ी बड़ी शिप्स में जो हार्बर्स होते उनको कहते हैं, वहाँ पे जहाँ पे इनको रखा जाता है, बांधा जाता है। और वहाँ पर उसने फिर से पोल, सैट ऑन द मास्ट, शिप्स का जो हाई ऊंचा सा एक पोल होता है उसके ऊपर वो बैठ जाता है। और वहाँ पर वो सेलर्स को काम करते हुए, जो शिप्स को सेल करके लेके जाते हैं इधर से उधर, उनको वो काम करते हुए देखता है और अपने आप में बहुत खुश होकर के कहता है आई एम गोइंग टू इजिप्ट, क्राइड द स्वेलो। और चिल्ला करके कहता है मैं भी इजिप्ट जा रहा हूँ। बट नो बडी माइंडेड एंड व्हेन द मून रोज ही फ्लू बैक टू द हैप्पी प्रिंस। लेकिन जैसे ही शाम फिर से होती है, मून, वो वापस हैप्पी प्रिंस के पास आके कहता है गुड बाय, ही क्राइड। अब वो गुड बाय कहने के लिए, आई हैव कम टू बिड यू गुड बाय, मैं तुम्हें गुड बाय कहने के लिए आया हूँ। स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो सेड द प्रिंस। लेकिन यहाँ पर फिर से प्रिंस आवाज़ देता है स्वेलो को, फिर से बोलता है विल यू नॉट स्टे विथ मी वन नाइट लॉन्गर, क्या तुम एक रात फिर से मेरे लिए नहीं रुक पाओगे यहाँ पर? इट इज़ विंटर। अब यहाँ पे फिर से स्वेलो उसको बोलता है कि यहाँ तो बहुत सर्दी है, बहुत कोल्ड है, बहुत विंटर है। एंड द स्नो विल सून बी हियर। और वो बहुत ज़्यादा जो है यहाँ भी हो जाएगी। इन इजिप्ट द सन इज़ वार्म ऑन द ग्रीन पाम ट्रीज़। और वो भी ये भी कहता है कि इजिप्ट में जो है सन वार्म है, बहुत वहाँ धूप निकल रही है, अच्छी धूप निकल रही है पाम ट्रीज़ के ऊपर। एंड द क्रोकोडाइल्स जो हैं लाई इन द मड एंड लुक लेजी अबाउट दिन। और क्रोकोडाइल्स भी उसको एंजॉय कर रहे हैं, वो गीली गीली जो मड्स होती हैं साइड में, रिवर की साइड में, वहाँ पर वो आकर के उस अच्छी धूप का, अच्छी सन का एंजॉय कर रहे हैं उसको। इन द स्क्वायर बिलो सेट द हैप्पी प्रिंस। अब यहाँ पर हैप्पी प्रिंस ने फिर से अपनी एक दूसरी, जो भी उसने वहाँ की सौरों को देखा, किसी को प्रॉब्लम में देखा, उस इंसिडेंट को वो फिर से शेयर कर रहा है स्वेलो से। देयर स्टैंड्स द लिटिल मैच गर्ल। एक वहाँ पर एक लड़की है जो मैच स्टिक है उसके हाथ में, वो मैच गर्ल है, माचिस को सेल करने वाली है। शी हैज़ लेट हर मैच फॉल इन द गटर। और उसकी जो माचिस की डिब्बियाँ थी वो गटर में गिर गई हैं। एंड दे आर ऑल स्पॉइल्ड। और वो सारी की सारी बेकार हो गई हैं, स्पॉइल्ड हो गई हैं। हर फादर विल बीट हर इफ़ शी डज नॉट ब्रिंग होम सम मनी। क्योंकि वो लड़की उसे सेल करने के, उसे बेचने के लिए गई थी और वो सारा कुछ गटर में गिर गया और बर्बाद हो गया। अब वो बच्ची जो है अपने फादर को कुछ पैसे ला करके नहीं देगी तो उसके फादर उसको मारेंगे। एंड शी इज़ क्राइंग। और इस तरीके से, इसलिए वो बच्ची रो रही है। शी हैज़ नो शूज़। उस बच्ची के पास कोई भी कपड़े नहीं है, शूज़ नहीं है, मोजे, स्टॉकिंग्स नहीं है। एंड हर लिटिल हेड इज़ बेयर। उसका जो सर है वो भी खुला हुआ, इस ठंड में, इस वेदर में, जो कि हर कोई अपने आप को वार्म रखने के लिए गर्म कपड़े पहन रहे हैं, लेकिन इस बच्ची के पास कुछ भी नहीं है खुद को ढंग से कवर करने के लिए। अब यहाँ पर लिटिल प्रिंस फिर से जो है, हैप्पी प्रिंस जो है, उस स्वेलो को कहते हैं प्लक आउट माई अदर आई एंड गिव इट टू हर। मेरी जो दूसरी आँख में सफ़ायर है उसे भी तुम निकाल लो और ले जा कर के उसे दे दो, जिससे कि वो हर फादर विल नॉट बीट हर, जिससे कि उसके फादर, इस बच्ची के जो फादर हैं, वो उसको बीट न कर सकें, मार न सकें, उसको टॉर्चर न कर सकें। इस तरीके से फिर से एक बार हैप्पी प्रिंस जो है स्वेलो को रिक्वेस्ट करते हैं कि आप एक बार रुक जाओ। नाउ नेक्स्ट द आई विल स्टे विथ यू वन नाइट लॉन्गर सेड द स्वेलो।
but I can't pluck out your eye. You would be quite blind then. Swallow, swallow, little swallow, said the prince. Do as I command you. So he plucked out the prince's other eye and darted down with it. He swooped past the match girl and slipped the jewel into the palm of her hand. What a lovely bit of glass, cried the little girl, and she ran home laughing. Then the swallow came back to the prince. You are blind now, he said, so I will stay with you always. No, little swallow, said the poor prince. You must go away to Egypt. No, I will stay with you always, said the swallow, and he slept at the prince's feet. All the next day he sat on the prince's shoulder and told him the stories of what he had seen in strange lands. Dear little swallow, said the prince, you tell me of marvelous things, but more marvelous than anything is the suffering of man and woman. There is no mystery so great as misery. Fly over my city, little swallow, and tell me what you see there. Now further, अब इस तरीके से मैच स्टिक उसका स्पॉइल हो जाता है उस बच्ची का, उसको उसके फादर मारेंगे, ये सारी चीज़ों की उसको बहुत टेंशन हो जाती है प्रिंस को, और वो उसकी हेल्प करवाते हैं स्वेलो से. अब यहाँ पर आई विल स्टे विथ यू वन नाइट लॉन्गर, सेड द स्वेलो, बट आई कैंट प्लक आउट यू. जब द हैप्पी प्रिंस यहाँ पर रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरी आँखों से सेकंड सफ़ायर भी लेकर चले जाओ, तो स्वेलो इसके लिए बिल्कुल रेडी नहीं होता है, और वो कहता है मैं तुम्हारे साथ रुक जाऊँगा यहाँ पर, लेकिन मैं तुम्हारी आँखों से नेक्स्ट वन जो है सफ़ायर का दूसरा पीस मैं निकाल करके ले जा करके उसे नहीं दूंगा, क्योंकि तुम पूरी ही ब्लाइंड हो जाओगे. अब यहाँ पर प्रिंस फिर से कहता है डू एज आई कमांड यू, जैसा कि मैं तुम्हें कह रहा हूँ वैसा तुम करो. और वो बार बार ऐसा इसलिए प्रिंस कहता है क्योंकि वो समझ आता है, वो जानता है कि स्वेलो इज़ सो मच, बहुत ही ज़्यादा केयरफुल है, बहुत ज़्यादा उसको हार्ट उसको मतलब प्रॉब्लम हो रहा है इस तरह का करने में. दैट्स वाई उसको कमांड करके बोलता है. सो ही प्लग्ड आउट द प्रिंस अदर आई, और इस वजह से उसको बड़ी मुश्किल से हैप्पी प्रिंस के ऑर्डर की वजह से वो उसकी आंखों के प्रिंस की दूसरी आई से भी सफ़ायर को निकाल करके लेके जाता है, और वो चुपचाप उसको ले जा करके उसके हाथों में ही स्विप्ड पास द मैच गर्ल, और बगल से वहाँ से गुजर करके उसके हाथों में रख देता है. एंड स्लिप द ज्वेल इनटू द पाम ऑफ हर हैंड. पाम में हथेलियों पर. व्हाट अ लवली बिट ऑफ ग्लास. और ऐसा जब उस करता है स्वेलो, तो वो बच्ची जो छोटी सी बच्ची लिटिल गर्ल थी जो मैच स्टिक्स को सेल करना था उसे वो ग्लास का जो पीस अपने हाथ में देखती है तो बहुत खुश होती है. एंड शी रैन, और भागते हुए अपने घर जाती हैं हंसते हुए. देन द स्वेलो केम बैक टू द प्रिंस. और अब यहाँ से वापस फिर से स्वेलो वापस प्रिंस के पास आता है और कहता है कि अब तो यू आर ब्लाइंड नाउ, तुम तो अब पूरी तरीके से ब्लाइंड हो गए हो, तुम पूरी तरीके से अंधे हो गए हो, तुम्हें तो अब कुछ भी नहीं दिखाई पड़ रहा है. सो मैं अब तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगा, मैं अब तुम्हें छोड़ करके नहीं जाऊँगा. लेकिन यहाँ पर पुअर प्रिंस कहता है नो नो लिटिल स्वेलो, नहीं नहीं लिटिल स्वेलो, यू मस्ट गो अवे टू इजिप्ट, तुम्हें जाना चाहिए, तुम्हें इजिप्ट जाना होगा. लेकिन यहाँ पर स्वेलो कहता है नहीं नहीं, आई विल स्टे विथ यू ऑलवेज, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगा. एंड ही स्लेप्ट एट द प्रिंस फीट. और ऐसा कह के वो प्रिंस के फीट के में जो जगह थी वहाँ पर जो खाली प्लेस था वहाँ पे जा कर के वो सो जाता है. ऑल द नेक्स्ट डे ही सैट ऑन द प्रिंस. और नेक्स्ट डे वो प्रिंस के कंधों के ऊपर आ कर के बैठ जाता है. यहाँ पर लुक हियर. और वहाँ पर एंड टोल्ड हिम स्टोरीज ऑफ वॉट ही हैड सीन इन स्ट्रेंज लैंड. और यहाँ पर बैठ करके वो अपने प्रिंस को उस स्ट्रेंज लैंड में जो भी उसने अभी तक की चीज़ें देखी थी वो सारी कहानियाँ उनको बताता है. और अब यहाँ पर प्रिंस कहता है डियर लिटिल स्वेलो, यू टेल में तुमने मुझे बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई, बहुत सी अच्छी अच्छी स्टोरीज़ बताई, लेकिन उन सब में सबसे अच्छी जो मुझे लगी कि तुमने मैन एंड वुमेन और लोगों की ह्यूमन बींग्स के लोग की जो सफरिंग्स थी, उनकी प्रॉब्लम्स थी, उनकी मिजरीज थी, उनके सॉरोस के बारे में मुझे बताया. इससे अच्छी तो कोई बात हो ही नहीं सकती. देयर इज़ नो मिस्ट्री सो ग्रेट एज मतलब इस संसार में, इस दुनिया में इस मिस्ट्री से ज़्यादा, इस रहस्य से बढ़कर कोई और
रहस्य हो ही नहीं सकता जो तुमने मुझे बताया, जो दूसरे का ह्यूमन पेन है उससे बेहतर तो कोई चीज़ हो ही नहीं सकती जो तुमने मुझे बताया है। फ्लाई ओवर माई सिटी लिटिल स्वेलो एंड टेल मी वॉट यू सी देयर। और इस तरीके से उसने कहा कि तुम मेरे शहर में जाओ, देखो और फिर मुझे बताओ कि तुमने और क्या क्या यहाँ पर देखा है। ना इन दिस वे स्वेलो बिल्कुल अब रेडी नहीं है प्रिंस को छोड़ करके, हैप्पी प्रिंस को जाने के लिए। सो द swallow flew over the great city and saw the rich making merry in their beautiful houses, while the beggars were sitting at the gates. He flew into dark lanes and saw the white faces of his starving children looking out listlessly at the black streets. Under the archway of a bridge, two little boys were lying in each other's arms to try and keep themselves warm. "How hungry we are," they said. "You must not lie here," shouted the watchman. And they wandered out into the rain. They wandered out into the rain. Then he flew back and told the prince what he had seen. "I am covered with fine gold," said the prince. "You must take it off, leaf by leaf, and give it to the poor. The living always think that gold can make them happy." Leaf after leaf of the fine gold the swallow picked off, till the happy prince looked quite dull and grey. Leaf after leaf of the fine gold he brought to the poor, and the children's faces grew rosier, and they laughed and played in the street. "We have bread now," they cried. In this way, Swallow was ready to do anything, whatever the prince was ordering him. इस तरीके से जो कुछ भी प्रिंस यहाँ पर अब कहते हैं हैप्पी प्रिंस स्वेलो को करने को, वो करने को तैयार हो जाता है। और अब वो हैप्पी प्रिंस के कहने पर वो पूरे शहर में घूमता है और वहाँ पर वो देखता है कि किस तरीके से जो अमीर है वो तो अमीर है ही, और वो अपने सुंदर घरों में, अच्छे घरों में बैठ करके एंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ को। लेकिन जो बेगर्स हैं जिनके पास कुछ नहीं है, इवन जिनके पास एक छोटा सा रोटी का टुकड़ा भी नहीं है, दे वर सिटिंग एट द गेट्स, वो बाहर गेट पे पड़े हुए हैं। ही फ्लू इनटू डार्क लेन्स, और उसके बाद वो स्वैलो जो है डार्क लेन्स में जा कर के देखता है कि वहाँ पे ही सॉ द वाइट फेसेस ऑफ स्टार्विंग चिल्ड्रन। ऐसे बहुत से बच्चों को वो देखता है जिनके चेहरे बिल्कुल मुरझाए हुए हैं, वाइट हो गए हैं, बिकॉज उनको कुछ भी खाना नहीं मिला है। एंड लुक आउट लिस्टलेसली एट द ब्लैक स्ट्रीट्स, और वो चुपचाप बिल्कुल एक नैरो लेन ब्लैक स्ट्रीट से, मतलब गहरी अंधेरे वाली गलियों की ओर देखते जा रहे हैं कि जिससे कोई आए और उनकी हेल्प करे। अंडर द आर्च वे ऑफ अ ब्रिज, हियर इज द, आपने ब्रिज देखा होगा, जो पुल होता है ब्रिज के साइड में जो प्लेसेस होते हैं, खाली जगह जो होती है, वहाँ पे बहुत से लोग सो रहे होते हैं अपने आप को, जिनके पास घर नहीं होता है उनके लिए वही रेस्टिंग प्लेस होता है। तो ऐसा ही उस स्वेलो को भी दिखता है कि आर्च वे ऑफ अ ब्रिज, ब्रिज के जो आर्च में जो साइड में एरिया है, वहाँ पर दो छोटे छोटे जो बच्चे हैं एक दूसरे के साथ आर्म्स में हैं, बिकॉज़ उनको वहाँ पे ठंड लग रहा है और बारिश हो रही है बाहर, और भूखे भी हैं वो बच्चे, और किसी भी तरीके से एक दूसरे से लिपट करके वो एक दूसरे को वार्म रखने की कोशिश कर रहे हैं ना। हाउ हंग्री वी आर, और वो ये कहते हैं कि हाँ हमें कितनी भूख लगी है। दे सेड यू मस्ट नॉट लाई हियर, लेकिन तभी एक वॉचमैन आता है और कहता है तुम्हें यहाँ पर नहीं रहना, तुम्हें यहाँ पर नहीं लेटना, तुम यहाँ नहीं रुक सकते हो। एंड दे वंडर्ड आउट इनटू द रेन, और इस तरीके से वो बच्चे जो हैं बाहर बारिश में चले जाते हैं और वहाँ पर वो भीगते हैं। देन ही फ्लू बैक इनटू द बैक एंड टोल्ड द प्रिंस व्हाट ही हैड सीन। इस तरीके से जो वो स्वेलो है वो सारा कुछ देख करके आता है और वो फिर वो सारी बातें प्रिंस को बताता है। अब यहाँ पर जब ये सारी बातें प्रिंस सुनता है स्वेलो से, उसको फिर से बहुत बहुत प्रॉब्लम होती है, बहुत कष्ट होता है कि मेरे इस शहर में क्या हो रहा है। आई एम कवर्ड विथ फाइन गोल्ड सेड द प्रिंस, प्रिंस कहता है कि मैं जो हूँ पूरी मेरी बॉडी में गोल्ड से मुझे कवर किया गया है। यू मस्ट टेक इट ऑफ लीफ बाय लीफ, तुम इसको एक एक करके ले करके जाओ, तुम एक एक करके ये लीफ जो है जिससे कि मुझे कवर किया गया है, इन सारी लीव्स को निकालो धीरे धीरे करके, एंड गिव इट टू द पुअर, और इसे उन गरीबों को दे दो जिन्हें इसकी ज़रूरत है। द लिविंग ऑलवेज थिंक दैट द गोल्ड कैन मेक देम हैप्पी, और मैं ये जानता हूँ
कि जो लिविंग पीपल हैं उनके दिमाग में उनकी ये सोच होती है कि ये गोल्ड है जिससे कि उनको हैप्पीनेस मिल सकती है, जिससे कि वो कुछ कर सकते हैं, वो खरीद सकते हैं। मैं डेड हूँ, मेरे तो ये किसी काम का नहीं है, मैं इसको लेकर के क्या करूँगा। सो लीफ आफ्टर लीफ ऑफ द फाइन गोल्ड दिस swallow picked off till the happy prince looked quite dull and grey. अब चूंकि यहाँ पर हैप्पी प्रिंस ने ऑर्डर किया था स्वेलो को ऐसा करने के लिए, सो स्वेलो ने एक एक छोटी छोटी पीसेस निकाल करके ले जाकर कि जो भी नीडी था, जो भी पुअर था, उनको उसने देना शुरू किया। और वो तब तक ऐसा करता रहा जब तक कि हैप्पी प्रिंस जो है बिल्कुल डल और ग्रे नहीं होगा, यानी उसका लीफ का जो गोल्ड प्लेटेड लीव्स पूरी कवर थी बॉडी में वो ख़त्म नहीं हो गई और वो पूरा डल नहीं दिखाई देने लग गया। लीफ आफ्टर लीफ of the fine gold he brought to the poor, and the children's faces grew rosier, and they laughed and played in the street. We have bread now, they cried. इस तरीके से जो बच्चे अभी जिनके वाइट फेसेस थे अब उनके चेहरे रेड हो गए, उनके फेसेस रेड हो गए, वो खुश हंसने लगे, मुस्कुराने लगे और उन्होंने स्ट्रीट्स पे खेलना शुरू कर दिया। और वो अब खुशी के मारे कहने लगे कि अब उनके लिए कुछ है खाने के लिए। और नेक्स्ट इस तरीके से स्वेलो ने हर वो काम किया जो हैप्पी प्रिंस को हैप्पी रखने में हेल्प कर रहा था, बिकॉज स्वेलो खुद बहुत ज़्यादा इस वक्त पेन में था कि उसने किस तरीके से उस हैप्पी प्रिंस को जो दूसरों के लिए अच्छा कर रहा है वो खुद भी आज ब्लाइंड हो गया है। देन द स्नो केम and after the snow came the frost. Then the snow came and after the snow came the frost. The streets looked as if they were made of silver. Everybody went about in furs, and the little boys wore scarlet caps and skated on the ice. The poor little swallow grew colder and colder, but he would not leave the prince. He loved him too well. He picked up crumbs outside the baker's door when the baker was not looking, and tried to keep himself warm by flapping his wings. But at last he knew that he was going to die. He had just enough strength to fly up to the prince's shoulder once more. "Goodbye, dear prince," he murmured. "Will you let me kiss your hand?" "I am glad that you are going to Egypt at last, little swallow," said the prince. "You have stayed too long here, but you must kiss me on the lips, for I love you." It's not to Egypt that I am going," said Swallow. "I am going to the house of death. Death is the brother of sleep, is he not?" And he kissed the happy prince on the lips and fell dead at his feet. It's really very, very saddening. बहुत दुख भरी स्टोरी है. Now from here, then the snow came. चारों तरफ ठंड, कोल्ड शुरुआत हो गई है, स्टार्टिंग हो गई है। एंड कोल्ड स्नो के साथ साथ फ्रॉस्ट, बहुत चिल करने वाली ठंड हो रही है वहाँ पर। स्ट्रीट्स जो हैं, जो लेन्स जो हैं, जो गलियाँ हैं, जो सड़कें हैं, वो पूरी सिल्वर की तरह लग रही हैं, क्योंकि चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ दिख रही है। और हर कोई, एवरीबडी, वहाँ पे जो लोग भी हैं, जो लोग रह रहे हैं, उन्होंने अपने आप को कवर कर रखा है, अपने आप को सेव कर रखा है। फर से कोल्ड से बचाने के लिए उन्होंने फ़र का यूज़ कर रखा है। और छोटे छोटे बच्चे, उन्होंने स्कैलेट कैप से, कैप होती है, दिस इज़ अ कैप हियर, इससे खुद को कवर रखा है। स्केटेड ऑन द आइस, वो खेल भी रहे हैं, आइस के ऊपर स्केटिंग भी कर रहे हैं। लेकिन हेयर द पुअर लिटिल स्वैलो ग्रू कोल्डर एंड कोल्डर, लेकिन इस पुअर लिटिल स्वैलो को बहुत ठंड लग जाती है। बट ही वुड नॉट लीव द प्रिंस, लेकिन उस सिचुएशन में भी वो प्रिंस को अब वो अकेले नहीं छोड़ता है। ही लव्ड हिम टू वेल, या बहुत बहुत ज़्यादा उस प्रिंस को, जिसके अंदर इतना अच्छा हार्ट है, ह्यूमन हार्ट। ऑल्दो ही इज़ डेड बट स्टिल ही इज़ लाइव, वो मर करके भी वो भी जिंदा है। इस तरीके से वो लोगों की मदद कर रहा है, वो उसको छोड़ करके नहीं जाना चाहता है। ही पिक्ड अप स्वैलो, अब यहाँ पर बेकर्स डोर्स व्हेन द बेकर वॉज नॉट लुकिंग, जब एक बेकर के वहाँ पर जाता है और वो देखता है कि जब बेकर नहीं देख रहा है, तो अपने आप को वार्म करने के लिए वहाँ से कुछ क्रम्स लेता है, जिससे कि उसको वो खाए और वो वार्म कर सके, खुद को बचा सके। एंड ट्राई टू कीप हिमसेल्फ वार्म बाई फ्लैपिंग हिज विंग्स, और इस तरीके से वो अपने विंग्स को भी फ्लैपिंग कर रहा है, जिससे वो खुद को वार्म रख सके। बट एट लास्ट
लास्ट ही न्यू दैट ही वॉज गोइंग टू डाई, लेकिन फाइनली उसको पता लग गया था कि अब वो ज़्यादा जिंदा नहीं रह सकता, वो अब मरने वाला है. सो ही हैड जस्ट एनफ स्ट्रेंथ, और इस तरीके से अपने अंदर वो थोड़ी सी स्ट्रेंथ किसी तरीके से एनी हाउ उसने अपने अंदर स्ट्रेंथ लेकर के आता है और प्रिंस के शोल्डर पे जा कर के फिर से पहुंच जाता है, पहुंचने की कोशिश करता है. फ्लाई अप टू द प्रिंस शोल्डर वंस मोर, एक बार फिर से वो प्रिंस के शोल्डर तक पहुंचने की कोशिश करता है. और ही मर्मर्ड, धीरे धीरे बुदबुदाते हुए हल्के से वो बोलता है, गुड बाय डियर प्रिंस. बाय कहना चाहता है. विल यू लेट मी किस योर हैंड, और कहता है कि क्या तुम मुझे अपने हाथ पर किस करने दोगे. नाउ गुड बाय, आई एम ग्लैड दैट यू आर गोइंग टू इजिप्ट एट लास्ट लिटिल स्वेलो. और ऐसा जब सुनता है प्रिंस तो उसने कहा, ओके आई एम ग्लैड, मुझे बहुत खुशी हुई कि अब तुम फाइनली इजिप्ट जा रहे हो लिटिल स्वेलो. You have stayed too long here, but you must kiss me on the lips, for I love you. और अब यहाँ पर हैप्पी प्रिंस कहता है कि तुम मेरे साथ यहाँ बहुत समय तक रुक गए, लेकिन अब चूंकि अब तुम जा रहे हो तो तुम मेरे हैंड पर नहीं, मेरे लिप्स पर तुम मुझे किस करो, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ. इट्स नॉट टू इजिप्ट दैट आई एम गोइंग, सेड फॉर स्वेलो. आई एम गोइंग टू द हाउस ऑफ डेथ. लेकिन यहाँ पर स्वेलो कहता है कि मैं इजिप्ट नहीं जा रहा, मैं तो हाउस ऑफ डेथ, मैं डेथ के घर जा रहा हूँ. और डेथ जो है स्लीप का ब्रदर है, यानी स्लीप इज़ द सिस्टर एंड डेथ इज़ द ब्रदर ऑफ स्लीप. एंड ही किस द हैप्पी प्रिंस, और इस तरीके से वो स्वेलो हैप्पी प्रिंस के लिप्स पर किस करता है और फाइनली वो फेल डेड एट हिज फीट, और उसके पैरों पर जा कर के वो गिर जाता है ना. कितना सैडनिंग स्टोरी, बहुत दुख देने वाली, कितना हार्ट टचिंग है ना. एट दैट मोमेंट अ क्यूरियस क्रैक साउंडेड इनसाइड द स्टैचू एज इफ समथिंग हैड ब्रोकन. The fact is that the leaden heart had snapped right in two. It certainly was a dreadfully hard frost. Early the next morning, the mayor was walking in the square below in company with the town councillor. As they passed the column, he looked up at the statue. Dear me, how shabby the happy prince looks, he said. How shabby, indeed, cried the town councillors, who always agreed with the mayor, and they went up to look at it. The ruby has fallen out of his sword. His eyes are gone, and he is golden no longer, said the mayor. In fact, he is little better than a beggar. Little better than a beggar, said the town councillors. And here is actually a dead bird at his feet, continued the mayor. We must really issue a proclamation that birds are not to be allowed to die here. And the town clerk made a note of the suggestion. Oh, they pulled down the statue of the happy prince as he is no longer beautiful, no longer useful, said the art professor at the university. Now here, student, at that moment, a curious crack sounded inside the statue. जब वो डेड हो जाता है, स्वेलो हैप्पी प्रिंस के पैरों पर गिर कर के मर जाता है, तभी एक आवाज़ आती है. और वो आवाज़ क्या थी? कुछ टूटने की, एज इफ समथिंग हैड ब्रोकन. और वो उस वक्त लेडन हार्ट, जो हैप्पी प्रिंस का मेटल का जो हार्ट था, वो डिवाइड हो जाता है 2 पीसेस में. एंड इट वॉज रियली, लोगों ने उस वक्त ये कहा कि ये हार्ड फ्रॉस्ट, काफ़ी ठंड पड़ने की वजह से ऐसा हुआ, लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं हुआ. ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसका प्यारा सा बिलवड जो उसका स्वेलो था वो मर गया था. अर्ली द नेक्स्ट मॉर्निंग, उसी की नेक्स्ट मॉर्निंग जो है मेयर वहाँ से होकर जाते हैं, और उन्होंने विद द टाउन काउंसलर्स भी उनके साथ थे. और जैसे ही एज दे पास द कॉलम, वो उस स्टैचू के पास से गुजरते हैं, उनको दिखता है वो स्टैचू, तो कहते हैं हाउ शैबी द हैप्पी प्रिंस लुक्स, कि हैप्पी प्रिंस का जो स्टैचू था कितना गंदा सा लग रहा है, कितना डर्टी सा लग रहा है. और वो आपस में ही डिस्कशन करके कहते हैं हाउ शैबी इंडीड. और वो जो कुछ भी है मेयर बोलते हैं, उनके साथ साथ उनकी जो टीम में मेंबर्स थे उन्होंने भी सेम बात को रिपीट किया, सेम जो भी उन्होंने कहा. cried the town councillors भी चिल्लाते हैं, who always agreed with the mayor and went up to look at it.
अब वो सारी की सारी हाँ में हाँ एक जैसा ही मिला रहे हैं। द रूबी हैज़ फॉलन आउट ऑफ हिज हॉट, वो यहाँ पर ये भी डिस्कस करते हैं कि इनकी आँखों से सफ़ायर और हिल्स से रूबी सब कुछ गायब हो चुका है, और जो गोल्डन प्लेट्स लगी थी, लीव्स लगी थी, वो भी सारी की सारी जो है उसकी हैप्पी प्रिंस की बॉडी से निकल चुकी हैं। और इस तरीके से ये बिल्कुल बेगर जैसा लग रहा है दिखने में, बिल्कुल बेकार सा लग रहा है। एंड सेट द टाउन काउंसलर एंड हेयर इज़ एक्चुअली अ डेड बर्ड, और साइड बाई साइड उसको जब अचानक वहाँ पर वो डेड बर्ड भी दिख जाती है हैप्पी प्रिंस के पैरों पर मरी हुई, तो वो उनको और गुस्सा आता है और वो कहते हैं कि वी मस्ट इशू एन ऑर्डर, मुझे एक ऑर्डर इशू करना पड़ेगा और ये कहना पड़ेगा कि हमें यहाँ पर किसी को मरने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए। यहाँ पर एक्चुअल में होता क्या है, दिस इज़ अ रियली ह्यूमरस कि ये कैसे वो किस तरीके से बता रहे हैं कि किसी को मरने के लिए किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं हो सकती है, बट यहाँ पर थोड़ी सी स्टोरी में ट्विस्ट लाने के लिए इस तरह प्रोक्लेमेशन जैसे वर्ड निकाले गए हैं। एंड द टाउन क्लर्क मेड अ नोट ऑफ, जैसा सजेशन होता है वैसा ही वो नोट भी बनाता है टाउन क्लर्क। ओ दे पुल डाउन द स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस, और फाइनली उस हैप्पी प्रिंस का जो स्टैचू है उसको गिरा दिया जाता है, उसको पुल डाउन कर दिया जाता है। एज ही इज़ नो लॉन्गर ब्यूटिफुल, बिकॉज वो अब सुंदर नहीं लग रहा था, उस सिटी के लिए वो गंदा सा प्लेस हो गया था। एंड सेट द प्रोफेसर, आर्ट प्रोफेसर, द यूनिवर्सिटी के जो आर्ट प्रोफेसर थे उन्होंने ऐसा कहा कि नहीं, अब ये गंदा हो गया है और इस प्लेस को वो बहुत अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है इस प्लेस के लिए, तो इसलिए अब इसे गिरा देना चाहिए। ऐसा उनके कहने के साथ ही उस स्टैचू को गिरा दिया गया। नेक्स्ट वन, देन दे मेल्टेड द स्टैचू इन अ फर्नेस। अब स्टैचू को जो है वो जो मूर्ति थी वो जो हैप्पी प्रिंस की, उसको फर्नेस पे लेके जाते हैं। फर्नेस इज़ आग की जो भट्टी होती है जहाँ हम किसी चीज़ को मेल्ट करने के लिए यूज़ करते हैं, वहाँ पर लेके जाते हैं। और वो कहते हैं व्हाट ए स्ट्रेंज थिंग सेड द ओवरसियर ऑफ द वर्कमैन एट द फाउंड्री। फाउंड्री, वहाँ पे जो काम करने वाले वर्कर्स होते हैं, वो भी जो भट्टी पे काम करते हैं, वो कहते हैं कि बड़ा अजीब सा लग रहा है, दिस ब्रोकन लीड हार्ट विल नॉट मेल्ट इन द फर्नेस, वी मस्ट थ्रो इट अवे। सो दे थ्रू इट ऑन अ डस्ट heap where the dead swallow was also lying. Bring me the two most precious things in the city, said God to one of his angels, and the angel brought him the leaden heart and the dead bird. You have rightly chosen, said God, for in my garden of paradise this little bird shall sing forevermore, and in my city of gold the happy prince shall praise me. तभी जब वहाँ पर वर्कर्स जो थे उस फर्नेस पे, फाउंड्री पे काम करने वाले, उन्होंने बोला कि बड़ी अजीब सी स्ट्रेंज सी बात है कि ये जो ब्रोकन हार्ट है ये मेल्ट नहीं हो पा रहा है इस फर्नेस में, तो इसे तो ले जाकर कहीं फेंक दो। और बाई चांस ऐसा होता है कि वो इसको एक ऐसी जगह पे फेंकते हैं जहाँ पर कि ऑलरेडी जो है जो स्वेलो पहले से ही जो डेड हो गई थी वो पड़ी हुई थी, और उसके पास ही इस हैप्पी प्रिंस के स्टैचू को के अंदर से जो हार्ट निकलता है उसको वहाँ पर फेंक दिया जाता है। और उसी वक्त वहाँ पर गॉड ने सेट गॉड टू वन ऑफ हिज एंजल्स, अपने एंजल्स को ये ऑर्डर किया था कि आप इस अर्थ से जाकर के वहाँ से शहर से, इन द सिटी का जो इस शहर में जो सबसे प्रेशियस सबसे कीमती चीज़ है वो लेकर के आओ। और उस सिचुएशन में एंजल्स जाते हैं उस शहर में, और वहाँ से वो लेडन हार्ट विथ डेड बर्ड, एक लेडन हार्ट के साथ, वही हार्ट जो हैप्पी प्रिंस का निकाल करके जो भट्टी में मेल्ट नहीं हो पा रहा था उसको और डेड बर्ड को लेकर के वो एंजल्स गॉड के पास पहुँचते हैं। यू हैव राइटली चोजन, गॉड ने कहा तुमने बिल्कुल सही चीज़ को चुना है, तुम बिल्कुल सही चीज़ लेकर आए हो। ये जो मेरा गार्डन ऑफ पैराडाइज है इसमें ये प्यारी सी लिटिल स्वेलो जो है बर्ड है ये गाएगी, और मेरी जो हैप्पी प्रिंस जो है वो सिटी ऑफ गोल्ड में हमें प्रिंस शैल प्रेज मी, वो मेरी हमेशा प्रशंसा करेंगे, हमारे लिए वो अच्छी अच्छी बातें कहेंगे। इस तरीके से हैप्पी प्रिंस की स्टोरी ओवर होती है। लेकिन रियली आई नो दिस स्टोरीज़, मुझे लगता है आपको भी ये स्टोरी बहुत पसंद आई होगी। आई होप ये वीडियो भी आपको अच्छा लगेगा, इस चैप्टर आपको समझ में आया होगा। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक, डू सब्सक्राइब एंड लाइक ऑल्सो स्टूडेंट्स।